Good morning, students. In previous video, we saw that trade, lesson number 9, page number 67. So, previous video, just we have seen the introduction of trade. All of you are familiar about the trade because from the ancient time, we have seen trade is going on. Means without trade, we can't communicate to each others. So you know that in the ancient time there was a barter system. Barter systems means why it was present that ancient time, because there was no currency. Okay, that's why they exchange the things. They exchange the things. Thus for example, अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए, अगर किसी को राइस चाहिए तो राइस के बदले में उसको गेहूँ देते थे या कोई भी ऐसी चीज़ देते थे. बट नाउअडेज वी आर सीइंग ट्रेड इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज बिकॉज यू नो दैट ट्रेड इंक्रीज आवर इकोनॉमी. सो फॉर इंडियन इकोनॉमी और एनी कंट्रीज इकोनॉमी इट इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी. सो वी सॉ दैट डिमांड, प्रोड्यूसर्स, बायर, sellers. Okay, all these factors are very important because if there is demand, okay, then we will supply that product or commodity. So today we will see the page number 68. Next part, when there is a buying and selling of goods, it is called visible trade. Visible trade and invisible trade. First of all we will see visible trade. मतलब जो trade we can see by our eyes is called as visible trade. For example, we are buying vegetables or we are buying any type of medicines from the medical, means we can see by our eyes. That's why it is called as visible trade. Now second point is invisible trade. In invisible trade we can't see by our eyes. We can't see by our eyes. In invisible trade they provide us service. वो हमको क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विस. They provide us service. For example, teachers, engineers, doctors, okay, they provide us service. So on the basis of their quantity we are seeing the type of trade. Okay, there are main type, or you can say on the basis of quantity of goods and on the basis of extent to trade regions. So first of all we will see the first type, page number 69. You can see according to the quantity of goods. So there are also two types. The first type is wholesale trade and second is retail trade. So first of all we will see what is mean by wholesale trade. Traders buy commodities on large scale directly brought from the producers. The commodities are also sold on large scale to retail traders. This is called wholesale trading. अब ये wholesale trade means what? Means wholesale traders buy a large commodity or large product from the producer or manufacturers. Then the wholesaler distribute to retailers. बाद में वो retailer को distribute करता है. Okay, that is called as wholesale traders. Wholesale traders buy goods on large scale from the industrialist, farmers. For example, the orchard owner of mangoes or orange sell their entire production to wholesale traders. जैसा कि आपने एग्जाम्पल दिया है, ऑर्चर्ड ओनर्स आर मैंगो और ऑरेंज, ओके, वो अपना जो प्रोडक्शन है, ओके, प्रोडक्ट है वो मतलब लार्ज क्वांटिटी में होलसेलर को बेचता है और बाद में होलसेलर रिटेलर को बेचता है और रिटेलर देन दे सेल टू कस्टमर्स. मीन्स वी बाय द कमोडिटीज फ्रॉम रिटेलर. कोई भी चीज़ लगती है हम किसके पास से लेते हैं? रिटेलर से. देन सेकंड पॉइंट इज retail trade. When the traders buy goods from the wholesale traders and sell it to directly consumers. जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, ओके, जो होलसेलर्स हैं, होलसेलर रिटेलर को ओके वो चीज़ बेचता है. देन रिटेल मीन्स
वो आदमी हु बाय अ प्रोडक्ट आर कम्युनिटीज फ्रॉम द होलसेलर्स। ओके, रिटेल मीन्स जो होलसेलर से कोई भी चीज लेता है एंड देन इट डिस्ट्रीब्यूट टू कस्टमर और कंज्यूमर, देन इट इज नोन एज रिटेल ट्रेडिंग। The quantity of goods is sold is less than in case, for example, the shopkeeper selling goods vegetable vendor in market. But या रिटेल में उसकी क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है। जैसे कि पहले कहा है मैंने होलसेल ट्रेडर्स। ओके, होलसेल ट्रेडर बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में वो प्रोड्यूसर से या फार्मर से वो चीज़ें लेता है। तो जो रिटेलर होता है, वेजिटेबल वेंडर है, ओके, कोई भी शॉपकीपर्स है, उससे भी लेस क्वांटिटी में लेता है और उससे भी लेस क्वांटिटी में कस्टमर देता है। ओके, इन दिस वे इट इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेड्स, क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। नाउ वी विल सी बी, अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ रीजन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हैपन एट वेरियस लेवल। ऑन दैट बेसिस ट्रेड कैन बी डिवाइडेड इनटू लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ओके, जो व्यापार है, ये जो ट्रेड है, ये अलग अलग जगह पे मतलब अलग अलग टाइप का होता है। जैसे लोकल है, रीजनल है, नेशनल है, इंटरनेशनल है ना। जैसे कि अपना महाराष्ट्र की के जो भी प्रोडक्ट है हम एमपी बेच रहे हैं, एमपी मतलब मध्य प्रदेश में बेच रहे हैं। ओके, ये हो गया, क्या हो गया, ये नेशनल। बट when we sell any product to America, Brazil, means it is called as international. So first of all, okay, there are two types of trades according to regions. The first is domestic trade. This trade takes place between different regions within same country. The size of the country, diversity, distributions and availability of natural resources affect the इंटरनल ट्रेड विद इन द कंट्री। ओके, ये जो डोमेस्टिक ट्रेड है, डोमेस्टिक ट्रेड आर इंटरनल ट्रेड। दिस ट्रेड यू कैन से हैपन इन द कैन से इन द बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री, मतलब जो व्यापार देश के बाउंड्री के अंदर ही चलता है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया है, महाराष्ट्र टू एमपी, एमपी टू बिहार, बिहार टू राजस्थान, मतलब अपने देश के अंदर ही जो व्यापार चलता है। ओके, ये हो गया डोमेस्टिक ट्रेड। एंड उसके लिए मीन्स मेरे फैक्टर्स अफेक्ट दैट ट्रेड्स। जैसे कि आप जानते हो कि हर एक रीजन में अलग अलग टाइप का प्रोडक्शंस होता है। जैसे कि अपना नागपुर रीजन है, ओके, नागपुर रीजन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑरेंज का होता है, बिकॉज द सॉइल्स, वेदर्स, ओके, वाटर फैसिलिटी, ओके, ऑल दिस फैक्टर्स आर अवेलेबल फॉर द ऑरेंज। बट इफ वी सी और डिस्ट्रिक्ट भंडारा, ओके, भंडारा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा क्या होता है, चावल होता है, राइस होता है, क्योंकि वो जो सॉइल है, ओके, वो जो वेदर है वो राइस के लिए फेवरेबल है। इसलिए द साइज ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस सर्विस, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, मार्केटिंग सिस्टम्स लीड टू द लार्ज स्केल इंटरनल ट्रेड। ओके, ये सभी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती है। उसका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसा है, उसका कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, उसका मार्केटिंग कैसा है। ओके, ओके, कोई भी चीज़ है उसकी सबसे अच्छी मार्केटिंग करना चाहिए। ओके, क्योंकि जैसे मैं आपको एग्जांपल लेना चाहता हूँ, आप बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन निकालते हो, लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं हो रही है, आपका जो प्रोडक्शन है, आपका जो कम्युनिटीज है वो मार्केट में नहीं जा रहा है, तो उसको वैल्यू नहीं रहेगी। दैट्स व्हाई ओके, उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा होगा, ओके, कम्युनिकेशन कैसा होगा, ये सब चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड है। इन इंडिया फैक्टर्स लाइक जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल कंडीशंस एंड हाई पॉपुलेशन आल्सो अफेक्ट द डोमेस्टिक ट्रेड। अ कंट्री डेवलपमेंट इज डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ growth, then trade will be also more. Thus there is positive relations between economic growth and trade. जैसे कि as you know, in our India is the second largest populated country in the world. That's why domestic trade या internal trade अपनी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होने के लिए, ओके, उसकी डिमांड फुलफिल करने के लिए हम ज़्यादा चीज़ें हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि उतने सारे लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए वो जो प्रोडक्ट है, ओके, कमोडिटी से अपने देश के अंदर वहीं पे वो इधर उधर मतलब उसका ट्रेड चलता है।
जैसे कि इफ यू सी द आसाम वैलीज में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है टी का। ओके, वो टी हम दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। दैट्स व्हाई वी आर सीइंग दैट इट इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक ट्रेड। मीन्स वंस अगेन आई रिपीट द पॉइंट। डोमेस्टिक ट्रेड मतलब जो व्यापार देश के अंदर चलता है, इंटरनल चलता है, वो हो गया डोमेस्टिक ट्रेड। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, this point our next portion of this lesson we will see tomorrow. Thank you.